Okay, Pulkit, was there a defining moment in the MBBS that nudged you towards UPSC preparation? क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स का कैरियर ट्रैक काफी डिफाइंड होता है, बहुत क्लियर होते हैं वो. सर अगर मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरा बचपन एस्पिरेंट्स को देख के ही बीता है. Okay, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूं. right. Interview, whose board was it? How was the experience? What was the feeling before entering the room and the feeling after exiting out of the room? ये कहूंगा कि इंटरव्यू इज द मोस्ट चिलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. Yeah. In the school where I was working, I used to just get across through UPSC Bhavan through Okay. that path. So that. So I used to think कि कभी मैं इसमें जाऊंगा, कभी लाइन में खड़े will be I able to give the interview. Yeah. तो उस दिन मुझे वो जो ड्रीम था it was getting converted into reality. तो मुझे इतनी खुशी थी. आपके फ्रेंड्स और बैचमेट्स जैसे आपने बताया कि कोई प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, तो उनका रिएक्शन कैसा था when they found out that you cleared UPSC? Actually मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया नहीं था कि I am preparing Okay. for UPSC. उन्हें पता ही नहीं था. Even my relatives didn't know कि जब तक क्लियर मत ना हो तब तक किसी को मत बताना. और जब रिजल्ट आया, जब मैंने उनको बताया तो they were quite surprised कि ये कर रहा था, तो ये कर भी रहा था. Unacademy. Let's crack it. Welcome to another inspiring episode of Pathfinder by Unacademy, where we decode the minds behind the success in the UPSC Civil Services examination. Today we have with us Dr. Pulkit Bansal, All India rank 155 in the UPSC CSE 2024 examination. So let's hear from the man straight himself, what worked, what didn't, and what made all the difference. Congratulations, Pulkit. How has it had been? कैसा चल रहा है after the reaction, after the result you saw your name in the PDF? Family कैसे react करी? What was you feeling before the result? Please describe that feeling for us. So actually in the April I joined a private job in which I was working as a doctor in a private school. Okay. So I couldn't see the list myself. On the day of declaration of result, I got a call from a coaching that Okay. you got so and so rank. So you were not waiting for the result? I was not waiting because I was involved in the schoolwork. So when I got the news, so there was a mixed feeling. Why mixed? There was a satisfaction that at least you could make it to the list. Right. But there is also a dissatisfaction because you couldn't get your desired services, which was IAS. Right. But overall, if you say, I was happy. My family was also happy that they didn't expect that I would be able to make it in my first attempt. So it was a great moment. Okay. Please tell a brief journey about your background, like your schooling, graduation, and also your UPSC journey, whatever it has been. So I was born in Ludhiana, Punjab, but Okay. my bringing has been always throughout in Delhi. I did my schooling from DLDAB Model School, Shalimar Bagh, Okay. from class LKG to class 12th. Thereafter, I got admission in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Oh, great. I did my MBBS there. And it was in my internship then that I decided that I will be switching to civil services. So I started my preparation in January of 2023, the starting of my internship. And then I gave 2024 attempt. And by God's grace, I was able to... It was your first attempt? It was my first attempt. Okay, Pulkit, was there a defining moment in the MBBS that nudged you towards UPSC preparation? क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स का कैरियर ट्रैक काफी डिफाइंड होता है, बहुत क्लियर होते हैं वो. We see very little doctors coming to UPSC now. So how did you get towards this field? सर अगर मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरा बचपन एस्पिरेंट्स को देख के ही बीता है. Okay. क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूं. Right. बट कभी भी बचपन से सिविल सर्विसेज में आने की इच्छा नहीं थी. अगर होती तो शायद कोई ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल 11th-12th में ह्यूमैनिटीज लेके कुछ छोटा सा ग्रेजुएशन करके मैं अपना अटेम्प्ट देता था यूपीएससी का. बट आई चूज एमबीबीएस व्हिच इज क्वाइट अ टफ प्रोफेशन. Yeah, of course. सो इट वाज इन 3rd ईयर जब हमें बल्लभगढ़ हरियाणा में भेजा जाता है एज अ पार्ट ऑफ रूरल पोस्टिंग. Okay. तो वहां पे मैंने देखा कि जो हेल्थ है वो हॉस्पिटल से ज्यादा लोगों के घर में शुरू होती है. Okay. क्योंकि लोगों के घर में कैसा पानी आ रहा है, कितनी स्वच्छता है, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कहीं ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, उनको कितनी नॉलेज है अबाउट हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल. तो अगर हम उस वाले प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ पे अगर ध्यान दें, Right. तो हम शायद अपने देश में जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उसमें हम्म. काफी वृद्धि कर सकते हैं. इसीलिए मुझे लगा कि शायद मुझे जाना चाहिए. बट क्योंकि 3rd ईयर था तो मुझे लगा कि शायद मेरा फैसिनेशन ही है टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, एक फैंटेसी सी है जो शायद थोड़ी देरों में खत्म हो जाएगी. तो आई शुड फोकस ऑन माय स्टडी.
तो मैंने अपनी पढ़ाई की एमबीबीएस में, फाइनल प्रॉफ में अच्छे नंबर आए मेरे, क्लास का होनहार विद्यार्थियों में से एक था मैं। बट फिर जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मेरे को सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ बेटर प्लेटफॉर्म राइट। जिससे मैं काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, और अपने जो मैंने मेडिकल साइंस में सीखा है उसको शायद इम्प्लीमेंट कार्यान्वित कर सकता हूँ। हम्म। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन इंटर्नशिप। आई डिडंट टुक एनी कोचिंग, तो खुद सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब पे प्रॉपर गाइडेंस से और जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल थे मार्केट में, उनसे प्रिपेयर किया, एंड बाय गॉड ग्रेस आई वाज एबल टू गेट इनटू द सर्विसेज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay. How did you manage answer writing, revisions, and clinical posting simultaneously? सो सर, माय शेड्यूल वाज नॉट रिजिड एट ऑल। Yeah. कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, बिकॉज कुछ पोस्टिंग्स ऐसी होती थी, क्लिनिकल पोस्टिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट एनर्जी लगानी पड़ती थी, तो आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। और कुछ लाइट पोस्टिंग्स होती थी तो उसमें आपको टाइम मिलता था। तो मेरे को ये मेरा मानना था कि जिसमें जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके हिसाब से उतनी पढ़ाई करूँगा, Right. क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी था कि आफ्टर आई विल बी कंप्लीटिंग माय इंटर्नशिप इन दिसंबर ऑफ 2023, तो मेरे पास जनवरी से लेके मई तक का जो But- प्रीलिम्स से पहले टाइम है उसमें Hmm. आई विल ट्राई टू कवर अप, Okay. कुछ मेरा अगर छूट गया तो। Mm-hmm. तो ऐसे ही क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी काम किया, और अपनी जो पढ़ाई थी उसको मैं साथ साथ करता रहा। एक बात ये दिमाग में ज़रूर थी कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास Resource restriction, very important. लिमिटेड रिसोर्सेज, Hmm. और उसको बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करना। और इंस्टेड ऑफ कि किताबें खोल के आप रिवाइज करें, एक्टिव रिकॉल पे मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहा, क्योंकि एक्टिव रिकॉल से आपकी जो मेमोरी रिटेनिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, राइट। तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ा। Hmm. तो उन चीज़ों से मैंने अपनी तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ डिड यू, मतलब कैसे गाइडेंस लिया? किसी से पूछा, कोई अच्छे मेंटर्स, या पूरा ही यूट्यूब और टेलीग्राम से ही समझा कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, क्या डिमांड है उसके बारे में? तो मुझे लगता है सर कि सबसे पहले तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। राइट। अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। तो जब आप अपने आप को जानेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे 10, 15, 20 वीडियोस टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ की देख ली। देख ली, फिर मुझे जो समझ में आया और मुझे जो हम अभी कर रहे हैं। जो मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, उसके हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, और फिर उसको क्रियान्वित करने में पूरी अपनी एनर्जी लगा दी। और कोई भी कोचिंग का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे इतने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट। कि अगर कोई किसी गाँव का गरीब बच्चा भी, जिसके पास उतने धन संसाधन Right, नहीं है right, तैयारी करने के, वो भी कर सकता है। तो एक मुझे देख के आप सब भी देख सकते हैं कि आपको दिल्ली आकर या करोल बाग में आकर ही तैयारी संभव हो, सिर्फ उसी से आईएएस बनते हैं, तो Right. ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम्म। अपने घर बैठ के भी आजकल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम, इट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, इट इज अ ग्रेट लेवलर। ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। देयर इज नो बेटर एडवांटेज या मोर एडवांटेज टू एनीवन। बिल्कुल। कि एक अगर अर्बन सेटिंग में बैठा हुआ बंदा उसको क्लियर कर सकता है, तो रूरल सेटिंग वाला भी कर सकता है। बिल्कुल। व्हाट वाज योर ऑप्शनल? सो माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी। This is a great mismatch, because a person from medical background, and especially from an institute like AIMS, you had that command over medical science. But why didn't you choose that optional and went for a sociology? तो सर, बिकॉज़ ऑफ टाइम क्रंच, क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप के अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ पढ़ाई करनी थी, तो एक ये बात भी थी कि बिकॉज़ ऑफ साइंस बैकग्राउंड मेरा ह्यूमैनिटीज़ से टच छूट गया था। Right. तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में थोड़ा हम्म। एफर्ट ज़्यादा लगा। तो इस चक्कर में मेरे पास जो टाइम था वो काफ़ी कम रह गया। तो जब मैंने मेडिकल ऑप्शनल की तैयारी शुरू की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट, Yeah. जो मेरे पास नहीं था। तो देन देयर वाज़ 2 ऑप्शंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मुझे थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा जो अपनी सोसाइटी के आसपास हो रहा है उससे रिलेटेबल लगा, तो आई थॉट कि ये ले लेते हैं, तो आई टुक सोशियोलॉजी। वैसे basically what would you suggest for beginners who are not able to decide which option to go for? मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करने का? Like you had that option of choosing medical sciences, but you assess that कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे बेटर है कि I'll choose that option which is more relatable and which is a humanities subject. तो क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करना चाहिए नए लर्नर्स को?
तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सबका अपना सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के बेसिस पे आप बिल्कुल निर्णय लीजिए। कोई देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल्स और स्ट्रैटेजी कि ऐसे-ऐसे ही ऑप्शनल्स डिसाइड करना है। बट जिसके पास टाइम है और रिसोर्सेज़ हैं, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि आपका उस विषय में रुचि है या नहीं। राइट इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे नहीं पाओगे और ऑप्शनल नीड्स योर एफर्ट एंड टाइम। नंबर सेकंड, ये देखिए कि उसमें ट्रेंड कैसा है मार्क्स का, क्योंकि इन द एंड यूपीएससी एक एग्जाम है। अगर आप इसके एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं तो आपके जितने भी अच्छे ही विजन हो या आपकी जो जितने Right, भी right. आइडियाज हो आप उसको You इम्प्लीमेंट have नहीं to be कर पाएंगे। practical. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। Hmm. तो आप ऐसा देखिए कि किस ऑप्शनल में देयर इज गुड ट्रेंड ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। Right. नंबर 3, सिलेबस देख लीजिए, वेदर यू इफ लाइक हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट रिक्वायर्स। Yes. तो अगर आपके पास टाइम कम है तो शॉर्ट सिलेबस में जिसमें अच्छी गाइडेंस अवेलेबल हो वैसा सा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। So Okay. these are few factors जो डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप क्या ऑप्शनल लेंगे। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, India's best learning platform. Thank you. How should a student who is beginning preparation simultaneously manage GS plus optional? Like if a student has to go for the next year prelims 2026, so entire 1 year is there because next prelims I think is on 24th of May. The calendar is already out. So how should a person plan GS plus optional for the next 4-5 months simultaneously? तो आई वुड सजेस्ट कि टेक सम टाइम एंड डिसाइड योर ऑप्शनल। तो जब आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेंगे तो देन आपके पास क्लैरिटी हो गई कि अब आपको क्या करना है। Right. तो नाउ यू प्लान योर 1 ईयर अकॉर्डिंगली। तो आप अपना जीएस उठा सकते हैं, मतलब यू कैन गिव सम आवर्स ऑफ योर डे टू ऑप्शनल एंड रेस्ट ऑफ द आवर्स टू जीएस। तो आप अपने मिनिमम रिसोर्सेज सब एक बुक लिस्ट बना लीजिए कि आपको जीएस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना है। you have the entirety of the resources which you need for civil service preparation। तो आप बस लिमिटेड रिसोर्सेज को फिर स्टार्ट कीजिए पढ़ना। जीएस के लिए कुछ समय आप ऑप्शनल को दीजिए। आई थिंक साइमल्टेनियसली कर सकते हैं अभी, और जैसे ही प्रीलिम्स पास में आए तो शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स। Right. और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है देन शिफ्ट टुवर्ड्स आंसर राइटिंग एंड मेंस। Right. So let's come to the first part, prelims. You were fortunate to clear it in the first attempt, but it has been a roadblock. It is becoming dicey. It is becoming unpredictable. So what was your approach towards prelims? Like how much time did you give specifically to prelims, and some brief resources that you referred? Just give a glimpse on that. So actually during my prelims I was working as a junior resident at AIIMS। Okay. तो Jan to June I was working as a junior resident at AIIMS। तो मेरा प्रीलिम्स उसी के बीच में ही था। तो ऐसे डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं कर पाया था मैं प्रीलिम्स के लिए। बट मेरा जो स्ट्रैटेजी था फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स, नंबर 1 जो मैंने सीखा और जो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट नॉलेज एज इट इज मोर अबाउट योर काम, कंपोजर एंड कॉमन सेंस। Yes, common sense, right? कॉमन सेंस। तो अगर आप पेपर में कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड गेट द राइट आंसर। Right, right. तो सिर्फ पढ़ाई का खेल नहीं है, योर कॉमन सेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, योर काम, कंपोजर एंड कॉमन सेंस। So I also suggest this one thing, that preparation and knowledge base plus the aptitude of solving paper in the exam hall. This both things get combinedly to clear the prelims. डेफिनेटली। नंबर 2, आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कीजिए। देयर आर सर्टेन Yes. थीम्स Right. which get repeated, तो आप उस थीम्स पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ रीडिंग नंबर ऑफ मटेरियल्स which is available in the market। जैसे एग्जांपल के तौर पे
अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे पीवाईक्यूज में तो उसमें रामसर साइट्स पे या Yes. स्पीशीज पे, Yes. तो ऐसे देयर आर सम माइक्रो थीम्स इन द पीवाईक्यूज, तो आप उस पे अगर फोकस करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. कर पाएंगे. Polity में there are certain topics which are repeated. Now in history they are targeting more on ancient और Yes, कुछ yes. specific terminologies Right, right. of history. तो आप एक Terms. compilation बना लीजिए कि what are the meanings of those ancient and medieval Like history. this year also, 2 days before prelims, that Arghata question. that It's was a a repeat PYQ. of PYQ. Yes, yes. Exact same Exact question. same question. तो PYQs are a must. आप इसके बिना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे. नंबर 3, आप थोड़ा MCQs को सॉल्व कीजिए. सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एनालाइज कीजिए चीजों को. देयर आर सम स्टेटमेंट्स जो आप अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट बिसाइड्स यूजिंग योर कॉमन सेंस. तो आई थिंक ये 3-4 बातें हैं जिससे मुझे लगता है कि प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं. Right, right. So let's address the second part also. CSAT. You were from a non-maths background, and how did you approach the CSAT paper? Like, how did you prepare, and what were your strategies in the exam hall to get to that 66.66 marks? So I would like to correct you. I had maths in my class 12th, Class 12th, 11th, right? 12th. I had Yeah. PCMB, and from beginning in the school only, I was good at mathematics. Okay, I was so good at mathematics that my teacher used to think that I will be taking engineering. right. So the intention to say all this is I didn't find CSAT difficult and I didn't prepare for it as well. Okay, So I was good at logical reasonings. I gave a few mocks and I knew that I will be able to clear. तो इतना effort नहीं लगा मुझे. But those who are finding it difficult, and also the difficulty is also increasing. yes. 2023 it was very difficult. Yes, yes, yes. Recently also it's been on a slightly tougher side as compared to 2024. Right, right. तो I would suggest कि if you find it difficult, तो practice makes a man perfect. और इसमें मैथमेटिक्स में लॉजिकल रीजनिंग में देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस. Yes. So you just if you can incorporate practicing, like अगर आप दिन में मतलब you can make good use of a time. सुबह सुबह जैसे लोगों की कंसंट्रेशन अच्छी रहती है Mm-hmm. तो दे शुड फोकस मोर ऑन वोलेटाइल सब्जेक्ट्स जिसमें याद ज्यादा करना है. एंड आफ्टर एज द डे प्रोग्रेसेस जब वो थक जाएंगे, if they start getting bored or burnt Yeah, out, yeah. so they can solve the MCQs of Yes, yes. logical reasoning Right, right. to refresh themselves. तो इससे they will be able to manage their time well और CSAT का भी preparation हो जाएगा सर. Okay. So let's come to the second part, mains, because that is what has got you selected. That is what gets you a rank. So how did you cover the syllabus, like for all the topics and subtopics mentioned in the GS and the optional? Did you make your own notes or refer to some compilations or topocopies? So how did you do that? So I was able to complete my syllabus in my internship only. Okay. And some part in January to June, क्योंकि कुछ topics हैं जैसे disaster management, right. security, Mhm. I did it later. तो I didn't make notes. What I used to do was जैसे polity है तो लक्ष्मीकांत में I used to just highlight the key areas और उसमें अगर I had to make some notes तो उसमें note बना लेता था for quick revision. Okay. And then there were some topics जिसके मैंने notes बनाए थे. For example से disaster management, क्योंकि Yeah. उसका कोई standard book नहीं है. Yeah. Disaster management, security, Mm-hmm. ऐसे short notes I made. और then my main focus was on building my content. Actually I gave some answer writing sessions. तो उसमें मुझे realize हुआ that I am able to address the demand of the question. I am able to present my answers well. मेरा structuring भी ठीक है. But where I am lacking was my content. Right. तो उस पे कंटेंट पे फोकस किया मैंने. ऐसे मॉडल आंसर्स में देखा उसमें क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं, वो निकाल कैसे डायग्राम्स वहाँ से. तो मेरा फोकस मेंस के दौरान उन चीज़ों पे ज़्यादा था. Okay. And how did you address the element of answer writing? Like how many tests you wrote, or you did it by your own self, and the use of PYQs also in the mains? तो मेरा मेन फोकस PYQs पे रहा, इवन इन प्रीलिम्स, इवन इन मेंस. तो what I did was after I got to know that I am clearing prelims, so I started doing PYQs. Okay. and trying to just सोचा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. और उसके PYQ बेस्ड प्रिपरेशन ही था मेरा मेंस के लिए. और जहाँ तक बात है आंसर राइटिंग की, तो ड्यूरिंग MBBS वी आर मेड टू राइट मेनी टेस्ट. Yeah. तो उससे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ टू स्ट्रक्चर, हाउ टू प्रेजेंट लेजिबली, Yeah. हाउ टू ऐड अ डायग्राम.
तो कुछ हद तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आई थिंक मुझे मेरी एमबीबीएस नहीं करवाती थी। सो जो मेंटल ट्रेनिंग की रिगर और डिसिप्लिन थी जो वो हाथ इसमें की राइटिंग की स्पीड थी या टू कंप्लीट द पेपर, हाँ तो वो सारे एक्सपीरियंस आई थिंक एमबीबीएस ने ही मुझे दे दिया था। तो मेरा मेन फोकस अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने पे और इन सब पे था। तो आई गॉट अ टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, या क्योंकि आई कुड क्वालिफाई द प्रीलिम्स, तो मुझे किसी कोचिंग ने दे गॉट मी फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द Okay. आंसर राइटिंग। ओके तो मैंने ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे बिकॉज एज आई टोल्ड कि मेरा मेन फोकस आंसर के कंटेंट पे बिल्डिंग पे था एज कम्पेयर टू राइटिंग आंसर्स। Yeah. बट मे बी 8 और 10 टेस्ट आई हैव गिवन, ओके इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आई वाज एंड यू वर एबल टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स हाँ, एक्सेप्ट फॉर GS1 ओके इन द एक्चुअल एग्जाम, बाकी सब पेपर्स मैं कंप्लीट कर पाया था। Okay, okay. Let's come to the last part, interview. Whose board was it? How was the experience? What was the feeling before entering the room and the feeling after exiting out of the room? Please describe that for us. तो मेरा इंटरव्यू वाज ऑन 8th April आई थिंक, Okay. इट वाज इन द लेटर फेज, Yes. सबसे लास्ट में ही हाँ था। हाँ हाँ. एंड ये कहूँगा कि इंटरव्यू इज द मोस्ट चिलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। Yeah. तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था कोई इंटरव्यू का। तो माय बोर्ड वाज सुमन शर्मा's मैम बोर्ड Okay. Suman Sharma ma'am. एंड आई गॉट मार्क्स 209 इन द फाइनल इंटरव्यू। Great. तो That's the highest, I think. No, I think highest no. is 215. 215। Right. So there was no fear or anxiety. I couldn't, on the day of interview, I was so happy that I used to actually, in the school where I was working, I used to just get across through UPSC Bhavan through Okay. that path. Through So that. I part. used to think कि कभी मैं इसमें जाऊंगा, कभी लाइन में खड़े होके I will be able to give the interview. Yeah. तो उस दिन मुझे वो जो ड्रीम था इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, तो मुझे इतनी खुशी थी कि फाइनली Anxiety नहीं थी, खुशी थी. एंजाइटी नहीं थी, खुशी थी। तो आई वाज हैप्पी, काम, कंपोज। मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था, Yeah. तो मुझे एकदम से उन्होंने कॉल कर लिया। आई वाज जस्ट फिलिंग माय फॉर्मेलिटीज। Okay. तो मैं अंदर गया। अच्छा, forenoon में first interview. फर्स्ट सेशन था मेरा। Great. तो मैं अंदर गया, आई ग्रीटेड एवरीवन। आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक इट टू दिस Stage. स्टेज। Right. तो आई मतलब द इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही फंबल कर गया, मुझे नहीं पता था। तो आई सेड मैम आई डोंट नो, Yeah. बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट फैक्चुअल नॉलेज, Yes. It is a personality test. पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर आपको नहीं आता तो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि आपको नहीं आता है। Yes. यू डोंट हैव टू मेक अप स्टोरीज, Yeah. Don't be dishonest over there. डोंट डिसऑनेस्ट। तो जो मुझे आता था मैंने बताया मैम को और बोर्ड मेंबर्स को, और जो नहीं आता था आई सिंपली सेड कि मैम मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ लूंगा बाद में जाके या Yeah. फिर मैं देख लूंगा। एंड इट वेंट अराउंड फॉर 35-40 मिनट्स एंड देन आई वाज asked to leave the room. So Okay. it was a great experience. So how did you prepare those opinion-based and personality-based questions before the interview? So there are a lot of coaching institutes also which help you frame questions based on your Yeah. DAF. Your DAF. और मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स भी दिए थे to just build my confidence how to interact with bureaucrats, क्योंकि उसमें जो मॉक पैनल्स होते हैं उसमें Yes, there yes, they are retired bureaucrats. Right. और वो किस तरह से सोचते हैं, आपके डैफ को देख के उनके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, बिकॉज दोज आर ओनली द पोटेंशियल Yes, क्वेश्चन yes, जो बोर्ड yes. में पूछे जा सकते हैं। तो मॉक्स देने से मुझे थोड़ा सा क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन है वो समझ में आए, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और समझ में आया कि हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट गिव हिज और हर ओपिनियन। Yeah. इट शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीम, इट शुड बी बैलेंस्ड। आप सारी साइड्स को देखिए किसी टॉपिक की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अलाइन करती है विद अ बैलेंस अप्रोच, आप यू शुड हैव दैट ओपिनियन ओनली। True. True. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स।
सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो इस तरह से आई गेव ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, आंसर्स टू दोस Did क्वेश्चंस। they ask anything outside your DAF that surprised you? मतलब it was very less questions based on medical field or my DAF. It was Okay. mostly outside only of the DAF. That was I was about to ask you that your entire interview must be focused on the medical field only, but that was not the case. It was very less. मतलब there were hardly 2 or 3 questions which was based on medical science, मतलब with topics, public health related aspects, but ज़्यादातर it was out of DAF only. Okay. Preparation के time daily routine कैसा था? मतलब you were completely cut off from everything or you were managing the things simultaneously? मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि मैं अपने आप को रूम में बंद कर लूँ। इवन इफ Right. आई वांटेड टू, मैं नहीं कर पाता था। तो अगर कोई बीच में इवेंट होता था, आई यूज्ड टू अटेंड। कोई फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, Okay. तो मैं चला जाता था। थोड़े समय के लिए ही सही, पर मैं जाता था, मुझे अच्छा लगता था। Mm-hmm. तो आई थिंक वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ बर्न्ड आउट हो जाते हैं बहुत Yes, ज़्यादा लोग। yes. तो थोड़ा सोशल कनेक्शन तो आई वाज़ मेंटेनिंग, मतलब आई वाज़ एक्टिव ऑन ट्विटर, इंस्टा, लिमिटेड कंट्रोल में था, Yeah. लेकिन आई वाज़ देयर, कट ऑफ कुछ नहीं किया था मैंने। बट ये ज़रूर था कि आइसोलेटेड था, क्योंकि देयर वाज़ नो अदर पर्सन हू वाज़ प्रिपेयरिंग Yeah. एज़ अ डॉक्टर, As a doctor. जिससे मैं डिस्कस करूँ अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ करूँ, तो उस सेंस में अकेला था। बट इन चीज़ों ने आई थिंक हैंड होल्डिंग किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन। आपके फ्रेंड्स और बैचमेट्स, जैसे आपने बताया कि कोई प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, तो उनका रिएक्शन कैसा था व्हेन दे फाउंड आउट दैट यू क्लियर्ड यूपीएससी? एक्चुअली मैंने अपने किसी आई एम प्रिपेयरिंग Okay. फॉर यूपीएससी, उन्हें पता ही नहीं था। इवन माय रिलेटिव्स डिडंट नो। Okay. तो एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो आई फाउंड अ मेंटर्स वीडियो ऑन, मतलब ही वाज गाइडिंग कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन उन्होंने बोली कि जब तक क्लियर मत ना हो तब तक किसी को मत बताना। राइट, राइट, राइट। तो मैंने आई फाउंड दैट क्वाइट प्रैक्टिकल कि 2 चीज़ें हो सकती है इससे, या तो वो आपको डिमोरलाइज़ करेंगे कि ये बहुत मुश्किल है बेटा, आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले आपको आईएएस बना देंगे। राइट, राइट, तो राइट। दोनों सिचुएशंस ही गलत हैं। या तो आप ज़मीन के अंदर चले जाएँगे, या फिर आसमान आसमान के में चले ऊपर चले जाएंगे। जाएँगे। राइट, राइट, तो वो दोनों चीज़ों से बचने के लिए आई डिडंट टेल एनीवन, और जब रिजल्ट आया, जब मैंने उनको बताया, तो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड, तू ये कर रहा कि था तू ये क्या? कर भी रहा था। क्योंकि उनको ये था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजी पीजी एंट्रेंसेस। एंट्रेंस, राइट। तो बट दे वर हैप्पी, दे दैट इज व्हाट इज कांग्रेचुलेटेड एक्सपेक्टेड मी। ऑफ अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। यस। तो ऐसा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ सरप्राइज एलिमेंट Yeah. इन देयर रिएक्शन। जो एस्पिरेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को प्लान कर रहे हैं, some 2-3 practical and realistic advice that you want to give that they must follow. मतलब these are the do's they must do. So please give that if you can think of. तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि यू शुड हैव क्लैरिटी कि आप सिविल सर्विसेज करना क्यों चाहते हैं। Yes, yes. क्योंकि यही आपका इंटरनल कंपास रहेगा ऑल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रिपीट एवरी डे द मुंडेन टास्क व्हिच यू हैव एट योर प्लेस। आपको क्यों करना है सिविल सर्विसेज, इस बात की अगर क्लैरिटी होगी, तो आपको कोई रील्स से मोटिवेशन या पावर से या फिर प्रेस्टीज से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। देयर विल बी ऑलवेज अ सोर्स इनसाइड यू, Yes, yes. जो फायर इन द बेली रहेगी, Right. which will keep you going. नंबर सेकेंड, अपने रिसोर्सेज एज मिनिमम एज पॉसिबल रखने हैं। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, अगर नॉलेज का ही होता तो 5-6 अटेम्प्ट्स वाले हैं, उनका क्लियर हो जाना चाहिए। Right. इट्स नॉट Very अबाउट नॉलेज। इस बात को समझिए कि नॉलेज तो है ही, along with it there is sort of element of luck. There's a concept in our Sanatan Dharma which is prarabdh. Yeah. प्रारब्ध मीन्स कि आपके कर्म भी हैं और कुछ आपका भाग्य भी है। भाग्य भी है। तो दोनों का रोल है इस एग्जाम में। और वो भाग्य का एलिमेंट कभी भी निगेट नहीं कर सकते आप, रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि इसका आप- स्ट्रक्चर ऐसा है। कुछ उसका है ऐसा स्ट्रक्चर, तो आप कितना ही अच्छे कर्म कर लें, मे बी Right. उसका इफेक्ट पूरी तरह से नेगेट ना कर पाए। तो इस बात को समझना चाहिए। एंड नंबर 3, ये एग्जाम एंड ऑफ लाइफ नहीं है। Yes. मतलब अगर नहीं हुआ तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज Right. बिसाइड सिविल सर्विसेज व्हिच यू कैन डू एंड क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिसाइड सिविल सर्विसेज आल्सो। आप एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड कीजिए, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए जिसको देश की जरूरत है। तो अगर आप वैसे भी करेंगे तो दैट ऑल्सो इज सर्विस ऑफ नेशन, उसमें भी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट यू शुड हैव सम प्लान बी ऑल्सो। Right. It's not just end of the life. UPSC is not end of the life.
तो ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बिसाइड्स आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टॉपर स्टॉक्स या इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बट ये जो 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होंगे तो आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट योर जर्नी। So आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग कि एक तो होता है एकेडमिक एस्पेक्ट इस एग्जाम का, और एक होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो बर्नआउट्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको कैसे डील करना चाहिए, या पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और बच्चे उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए व्हाट वुड यू वांट टू से? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एज़ अ यूपीएससी सिविल सर्वेंट, कि यूपीएससी का हाइप बहुत ज़्यादा है मार्केट में। पेरेंट्स को स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि यूपीएससी सब कुछ नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो पेरेंट्स, क्योंकि आपस अपने समाज में Yeah. देखते हैं कि किसी का बच्चा कुछ बन गया, राइट, और अपनी समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए सोशल मोबिलिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उसके लिए दे पुट एनॉर्मस प्रेशर, इतना प्रेशर डाल देंगे कि बच्चे पे कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, कि ये नहीं देखते हैं कि बच्चे की मानसिक हालत, मानसिक सेहत क्या बिगड़ रही है नहीं, या उसके साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि एग्जाम आपने जैसे कहा कि इट्स एकेडमिक तो है ही, साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल भी है, तो बिल्कुल। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको फोर्स ना करें, और अगर वो मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ लक आल्सो टू यस दिस। यस, और सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो टॉपर्स हैं उनको कम हाईलाइट कीजिए, इंस्टेड उनकी स्टोरी सुनाइए जिन्होंने अपनी लाइफ के 6-6 साल या सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट कर दिए। तो इससे समझ में आएगा कि इस एग्जाम में फेलियर ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सक्सेस। yeah. तो अगर आप मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं आज, आपको पता चलेगा कि शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं है इसमें, देयर इज लॉट ऑफ लक आल्सो, बहुत ज्यादा और किस्मत वो है, एलिमेंट ऑफ लक वो इस रहेगा एग्जाम ही, के नेचर की वजह से रहेगा, रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों पे फोर्स ना करें, अगर बच्चे का मन है तो उसको करने दें, और उसको एनकरेज करें। एनकरेज करें, लेकिन उसको जबरदस्ती उस पर प्रेशर बर्डन मत डालिए। बच्चा ज्यादा जरूरी है, पोस्ट तो आती जाती रहेगी। मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को मेंटल कोई हेल्थ कैटर नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, राइट, तो इस पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और बच्चों को भी ये कहेंगे जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड हैव अ प्लान बी, इस पे Right. लाइफ खराब नहीं करनी। राइट। ओके पुलकित, if you could blend your roles as a doctor and civil servant, how would you want to serve the society? तो सर अभी तो आई एम गेटिंग आईपीएस, Okay, तो देयर इज लॉट, मतलब देयर इज अ स्कोप कि आई कैन इम्प्रूव द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, Right. कि फोरेंसिक्स में yeah, एज अ डॉक्टर जो मैंने सीखा है, हाउ कैन वी इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी yes, with the investigation, how we can use technologies like AI और ये सब yes, yes, in yes. like अभी दिल्ली पुलिस ने भी they हम्म, have हम्म, created a artificial intelligence based Right. detection surveillance mechanism। तो टेक्नोलॉजी को कैसे ला सकते हैं टू इंश्योर कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, टू रिड्यूस द क्राइम, फॉर बेटर इन्वेस्टिगेशन। Yeah, और I heard So- about I was preparing that time when the COVID came, so I heard about a doctor, Dr. Saurabh Sunavne. He was an IAS, and when there was dearth of doctors, so he joined the duty as a doctor. He started treating the patients. So this was a complete blend of a doctor and a civil servant. बिल्कुल, मतलब आई एम अ डॉक्टर एंड आई विल ऑलवेज बी अ डॉक्टर, तो अगर देश को मेरी जरूरत पड़ेगी एज अ डॉक्टर, Right. तो आई कैन ऑलवेज गिव माई सर्विसेज फॉर दैट। True, very true. बट एज अ सिविल सर्वेंट, तो जो मैंने मेडिकल साइंस से सीखा है, आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट टू Right. ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स। Okay, Pulkit. So we are on to the last segment. Some rapid questions, rapid fire. White coat or khaki? बोथ। Both. Okay. Anatomy Viva versus UPSC interview. यूपीएससी इंटरव्यू। UPSC interview. One UPSC myth you busted during the preparation. बिना कोचिंग के भी सक्सेस मिल सकती है। Right. Tea or coffee? नीदर, Neither. आई एम मोर ऑफ वाटर बेस्ड। Okay. Your go-to stress buster during the preparation? वॉकिंग, Walk. सेल्फ टॉक एंड वॉक। Favorite line from your UPSC interview, if you can remember, by the interviewer or by yourself? Not specifically to the interview, but this line motivated me a lot during my this journey। Journey. द्वंद्व नहीं जिनके जीवन में, उनका जीवन अभागा होगा। द्वंद्व नहीं जिनके जीवन में, उनका जीवन अभागा होगा।
या तो प्रण को तोड़ा होगा या मैदान छोड़कर भागा होगा। तो दिस Great, हाइलाइट्स great. कि लाइफ में स्ट्रगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या Yes. वैल्यू है। और एक मैसेज और देना चाहूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का अर्थ खत्म हो जाता। Yes, true. तो जहाँ पे फेलियर का रिस्क है वहीं तो सक्सेस का मायने है, Right, वहीं तो right. सक्सेस की कदर है। तो आप रिस्क लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, एक प्लान बैकअप रखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बाद में। If you could prescribe one medicine to UPSC aspirants, what would it be? Drink a lot of water, do yoga and focus on your physical health. Okay, Pulkit, now that you have achieved this milestone, what are your aspirations for the future and how do you envision your role as a civil servant? Sir, as I am getting IPS, I will be joining Police Academy Hyderabad, Yeah. and if this is the destiny for me, the IPS one, so I will be ensuring that how I can bring more, technology Yeah. to ensure कि law and order is maintained well. The problems which we face today, Yeah. they can be curbed down, Right. and I want to make police a force from which people should not fear. पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, Yes. पुलिस से दोस्ती होनी चाहिए। वो This अभी kind of वो जो perception बना हुआ है. उसको चेंज करने का प्रयास रहेगा Okay. कि लोग पुलिस से डरे नहीं, उसको अपने एक रक्षक की तरह देखें। तो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, वो जो परसेप्शन चेंज है, उस पर ध्यान रहेगा। Thank you, Pulkit, and all the best for your upcoming journey. थैंक यू सर। Thank you. Unacademy. Let's crack it.